Hello and welcome to Poonam Dua classes. Thanks for watching our videos, our channel, and for your regular feedback for us. Recently, I've been getting many requests. Students are asking for analysis of previous paper of Indian English Literature IGNOU MEG 07. So here we go with the analysis, but please keep in mind this is not a shortcut for your preparation and it will be graspable and understandable only for those who have already studied all the topics in a deep manner. Many of you are future lecturer, UGC NET, PhD aspirants. Please study to learn, do not study just to get marks. So here we go with the analysis, and please do not forget to share and subscribe the channel. Let us see the question paper first and then we will discuss each and every question individually. First question जो होता है वो आपका RTC से रिलेटेड होता है, जिसमें आपको अराउंड 6 to 7 RTCs दी जाती हैं और आपको उसमें से कोई 4 RTCs को लिखना होता है विद कंटेक्स्ट. आपको राइटर का नाम लिखना है, पोइट्री का नाम लिखना है, उन पर्टिकुलर लाइन्स में पोएट ने क्या कहना चाहा है वो लिखना है. तो हम इंडिविजुअली इन सभी 6 RTCs को डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें इंटरनल चॉइस ही होती है. क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये क्वेश्चंस आपको करने होते हैं जिसमें से आपको इंटरनली चूज़ करना है कि आपको दोनों पार्ट्स में से कौन से पार्ट्स को कवर करना है. Let us go for the first RTC now. You are supposed to explain the writer about the poetry and the lines as well. Those hands are cold, but if thy notes divine, maybe by mortal wakened once again. Harp of my country, let me strike again. This has been taken from the poetry Harp of India, written by Henry Desrosiers. नाम सुनकर ऐसा लगता है कि he is a Britisher, but no, he is an Indian. He is an Indian who led the Young Bengal movement and is also known as the first modern English poet of India. ये जो पोइट्री है हमारी हार्प ऑफ इंडिया, दिस पोइट्री mourns India's loss of freedom to the British and hopes it would regain its past glory. इस पोइट्री में बताया गया है कि इंडिया ने अपनी ग्लोरी, अपनी शान खो दी है विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स एंड इंडिया विल राइज अगेन. इट विल वेक वंस अगेन एंड द हार्प इज सिंपली अ मेटाफोरिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हेयर. हार्प को कंपेयर किया गया हमारी कंट्री की ग्लोरी से, हमारी कंट्री की शान से, हमारी कंट्री में जितने अच्छे अच्छे राइटर्स पोएट्स से उनसे, कि एवरी वन, एवरी ग्लोरी, एवरी लॉस्ट ग्लोरी विल अवेकन वंस अगेन. And here Desrosiers uses this instrument harp to represent India's loss of art, India's loss of literature. अब देखिए RTC का B part. For your sakes shall the tree be ever dear, blent with your images, it shall arise in memory till the hot tears blind mine eyes. This is taken from Or Casuarina Tree and a poem published in 1881 by Toru Dutt. Or Casuarina Tree is a poem published in 1881 by Toru Dutt, who was an Indian poet, I must say. In this poem, Toru Dutt celebrates the majesty of a very grand tree. एक बहुत ही बड़े कैसुरेना ट्री की मेजेस्टी को वो सेलिब्रेट करती हैं और वो ट्री उनके बचपन की यादों से जुड़ा है. द ट्री दैट शी यूज टू सी बाय हर विंडोज़ एंड रिमेंबर्स हर हैप्पी चाइल्डहुड डेज स्पेंट अंडर दैट ट्री एंड रिवाइव्स हर मेमोरीज विद हर बिलवड सिबलिंग्स. आप में से सभी लोग शायद जानते होंगे जिन्होंने टोरू दत्त को स्टडी किया है, ना सिर्फ टोरू दत्त बल्कि उनके भाई और बहन की डेथ भी बहुत ही अर्ली एज में हो गई थी. The poet wishes to dedicate the tree's memory and importance for the sake of those who are now dead and looks ahead to her own death as well. कहीं ना कहीं वो अपने सिबलिंग्स की डेथ को कंटेम्पलेट कर रही हैं और बहुत अच्छे से ये भी जानती हैं कि उनको भी एक दिन मरना है. Everybody is mortal on this earth. This is what she remembers always while writing her poetries. Next one, option C. Beauty of the light surround my life, beauty of the light I have sacrificed longing and parted from grief. This is taken from Bride of the Fire, a poetry written by Sri Aurobindo, an Indian philosopher, spiritual reformer, poet and you can say yogi as well. इस पोइट्री की बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रिलीजियस लेवल की सिग्निफिकेंस है.
इस पोएट्री में लाइट का इस्तेमाल किया है पोएट ने. द पोएट कॉल्स आउट टू लाइट विच इल्यूमिनेट्स द अर्थ. लाइट को इवोक कर रहे हैं वो. एंड लाइट इज रेफर टू एज ब्राइड ऑफ फायर. अग्नि की दुल्हन हो जैसे हो. एज लाइट इज बिलीव टू बी द कंपेनियन ऑफ अग्नि, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस. ही आस्क्ड लाइट टू टेक विद हर एज it has now overcome grief and all the earthly emotions. लाइट को, फायर को वो ट्रीट करते हैं जैसे कि सारे अर्थली इमोशंस और ग्रीफ को एलिमिनेट करती है, ये चीज़ें रिमूव करती हैं. फायर एंड लाइट, ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली इल्यूमिनेट द अर्थ एंड एलिमिनेट द डार्कनेस फ्रॉम द अर्थ. नेक्स्ट इज ऑप्शन डी. अगर आपको इन 7 ऑप्शंस में से कोई 4 भी आते हैं तो आप अच्छे से अपना पेपर अपीयर कर सकते हैं. लेकिन जो भी पोइट्री प्रिपेयर करें ना, प्लीज़ उसको थोड़ा सा डीपली प्रिपेयर करें. आई एम रीडिंग दिस वन. ओ लव, आई ड्रीम्ड माई सोल हैड रैंसम्ड दी इन दाई लोन ड्रेड इनकैलकुलेबल और फ्रॉम दोज पेल हैंड्स एट विच ऑल मॉर्टल कवर. तो देखते हैं इन लाइन्स में क्या कहना चाहा है हमारी पोइटेस ने. एक्चुअली दीज लाइन्स आर रिटन बाय सरोजनी नायडू एंड द पोम इज लव एंड डेथ बाय हर. Here the premises of the poem is that there are 2 lovers, 2 lovers हैं. One is alive and unfortunately the other is dead. But the female, she is happy that now her love is immortal because in her dreams she dreams of releasing his soul by paying ransom at the right time before anyone could have pulled him back. हमारी पोइटेस को ऐसा लगता है कि वो अपने लवर को डेथ के क्लचेस से वापस खींच लाई हैं, डेथ को एक रैंसम देकर, एक फिरौती देकर. शी फील्स ग्रेट फॉर हैविंग कॉन्कर्ड डेथ बाय हर लव, लाइक हाउ इन द सेम मैनर सावित्री ब्रॉट हर हस्बैंड सत्यवान बैक फ्रॉम द डेथ. सो दिस इज द पोइट्री लव एंड डेथ बाय सरोजनी नायडू, इन विच अ फीमेल पोएट इमेजिन्स कि वो अपने लवर को डेथ के क्लचेस से, डेथ के चंगुल से छुड़ा कर ले आई है कोई फिरौती देकर. एंड हियर कम्स वन ऑफ माई फेवरेट पोइट्री एंड फेवरेट लाइन एज वेल. ऐसी लाइन्स जो कि शायद लाइफ के हर फेज़ पर अप्लाई होती हैं. जब भी हम लोग कुछ काम शुरू करते हैं, कुछ नया काम शुरू करते हैं, तो पढ़ते हैं इन लाइन्स को और इन लाइन्स का कंटेक्स्ट भी जानते हैं. इट स्टार्टेड एज अ पिलग्रिमेज, exalting minds and making all the burdens light. The second stage explored but did not test the call. These lines are taken from the poetry Enterprise by Nissim Ezekiel. इस पोइट्री में उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एक पिलग्रिमेज को दिखाया है, और वो पिलग्रिमेज कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन है हमारे किसी भी प्रोजेक्ट का. कोई भी ऐसा काम जो हम लोग हाथ में लेते हैं तो शुरुआत में ना बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं हम लोग कि जल्दी से कवर कर लेंगे हम इस काम को. लेकिन धीरे धीरे वी स्टार्ट फीलिंग लेथेर्जिक, थोड़ी सी टायर्डनेस होने लगती है, थोड़ी सी बोर्डम होने लगती है, और वही चीज़ें जो हमें शुरू में बहुत इंटरेस्टिंग लगा करती थी, वही चीज़ें हमें बोरिंग लगने लगती हैं एक्चुअली. So this is the first stanza actually of this poetry. The poet says that he went on a pilgrimage. एक यात्रा पर गए along with a number of other people. All of them were quite enthusiastic, so their minds were full of joy, full of excitement for the pilgrimage. This excitement made the burden of troubles very light. शुरुआत में जितनी भी ट्रबल्स आए ना बड़ी लाइट लगती हैं, बड़े एन्जॉयमेंट के साथ हम उन ट्रबल्स को एक्सेप्ट करते हैं. Thus all the problems, all the difficulties that were there seemed nothing in front of the enthusiasm. And this was the first stage of the pilgrimage. The stage can be compared to the early youth. हम कह सकते हैं कि जब हम लोग अपने early youth में होते हैं तो सब कुछ हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. सारी प्रॉब्लम, सारे फेलियर्स हम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं. लेकिन जब हम सेकेंड स्टेज में जाते हैं किसी जर्नी की और वही प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, देन वी फील ट्रबलसम, वी फील टायर्ड ऑफ दोज प्रॉब्लम्स. हम यहाँ पर अपने MA इंग्लिश का ही एक एग्जांपल ले सकते हैं. जब भी हम ये कोर्स स्टार्ट करते हैं ना, मेरे सभी स्टूडेंट्स MA इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट करते हैं तो इन द बिगिनिंग दे आर वेरी एंथुसियास्टिक. असाइनमेंट्स भी बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, 1 या 2. लेकिन उसके बाद सारी स्टडीज़, सारी असाइनमेंट्स लास्ट डेट की तरफ स्ट्रेच हो जाती हैं एंड दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि डेट एक्सटेंड हो जाए तो अच्छा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ. जहाँ 1 महीने में 3 असाइनमेंट्स लिख ली गई थी, वहाँ बची हुई एक असाइनमेंट बिल्कुल एंड डेट पर लिखी जाती है. पीपल कीप ऑन वेटिंग, थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाए. शुरुआत करते हैं तो बहुत ही
एनर्जी के साथ करते हैं कि सब कुछ आज ही पढ़ लेंगे हम, लेकिन धीरे 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 वो प्रोसेस स्लो होता चला जाता है. ऑल्दो डज नॉट अप्लाई टू एवरी स्टूडेंट, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स दिस सिनेरियो एक्चुअली अप्लाइज. आप में से भी शायद कई लोग इस वक्त स्माइल कर रहे होंगे ये सोचकर कि हाँ, हमारे साथ भी यही हुआ था. ये पोइट्री ली गई है कमला दास की, ये लाइंस ली गई हैं कमला दास की पोइट्री माई ग्रैंड मदर्स हाउस से. कमला दास पॉपुलरली नोन बाय हर वन टाइम पेन नेम माधवी कुट्टी. याद रखिएगा, अगर आप में से कोई भी यूजीसी नेट या कोई एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन हो सकता है कि कमला दास का पेन नेम क्या था. इट इज़ माधवी कुट्टी. एंड मैरिड नेम कमला दास. शी वॉज इन इंडियन पोएट इन इंग्लिश एज वेल एज ऑथर इन मलयालम फ्रॉम केरला, इंडिया. द गिवन एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं अब हम. द गिवन एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम माई ग्रैंड मदर्स हाउस रिटन बाय कमला दास, and the poet here is feeling very sad, very bad after her grandmother's death. She had got maybe lots of love from her, and now for the lost love she begs it from strangers too. शायद वो अपने हस्बैंड को या अपने किसी मेल लवर को एड्रेस कर रही है इस पोइट्री को और कह रही हैं कि मुझे पहले बहुत प्यार मिला करता था, लेकिन अब मुझे स्ट्रेंजर्स के पास जाना पड़ता है उसी प्यार को पाने के लिए. मुझे अपने लवर से, अपने हस्बैंड से वो प्यार नहीं मिलता जो मैं डिज़र्व करती हूँ. नेक्स्ट वन, पार्ट जी. ही हैड स्पेंट हिज यूथ होरिंग आफ्टर इंग्लिश गॉड्स. देर इज समथिंग टू बी सेड फॉर एग्जाइल. यू लर्न रूट्स आर डीप. दिस पोइट्री इज एक्साइल बाय आर पार्थसारथी. और अब हम देखते हैं कि इस पोइट्री में आखिर है क्या. आर पार्थसारथी के बारे में भी जानते हैं थोड़ा सा. आर पार्थसारथी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडो इंग्लिश पोइट्री सिंस इंडिपेंडेंस, एंड हिज कलेक्शन ऑफ पोम्स रफ पैसेज हैज़ अ 3-tier structure. In the first section of Exile, the poet describes his life in England where he felt like an exile uprooted from his culture. उनको ऐसा लगता था कि अपने कल्चर से एलियनेट हो गए. इन दीज लाइन्स इट फील्स दैट ही इज़ कंटेम्पलेटिंग हिज लाइफ अब्रॉड इन अ फॉरेन कंट्री, बट द रूट्स आर इंडियन. ऑफकोर्स कोई भी पर्सन जो किसी फॉरेन कंट्री में जाता है, स्पेसिफिकली इंग्लिश कंट्री में, तो वो लाइफ तो वहाँ की जीते हैं लेकिन उनके रूट्स इंडिया के ही रहते हैं. दैट इज़ वेरी ऑब्वियस. ही सेज दैट ही हैज़ स्पेंड हिज लाइफ विद इंग्लिश गॉड्स. मेटाफोरिकली ही इज सेइंग कि नाउ ही इज़ अटैच्ड टू इंग्लिश कल्चर. What remains vivid about this poem is a sense of both displacement and belonging. वो displace भी हो गए हैं अपने ओरिजिनल प्लेस इंडिया से, लेकिन belonging की फीलिंग अभी तक है कि वो इंडिया से ही जुड़े हुए हैं. A rediscovery of one's roots and acute awareness of the loss of one's language, one's culture is quite reflective in these lines. अब शुरू होते हैं हमारे subjective questions. The second question is generally from Untouchable and Kanthapura. तो चॉइस तो होती है इन दोनों की आपस में, बट जनरली एक कॉमन क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गांधीयन आइडियोलॉजी पर कौन कौन से नॉवेल्स बेस्ड हैं, तो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ बोथ. बेसिक नॉलेज दोनों की होना ज़रूरी है, लेकिन आप किसी एक को इनमें से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर कर ज़रूर जाइए, लेकिन दूसरे की नॉलेज ज़रूर रखिए, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज. द क्वेश्चन इज डिस्कस मुल्कराज आनंद्स नॉवल अनटचेबल एज अ गांधीयन नॉवल. तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. डिस्कस मुल्कराज आनंद्स नॉवल अनटचेबल एज अ गांधीयन नॉवल. पहले तो जानते हैं कब ये पब्लिश हुआ था नॉवल. मुल्कराज आनंद ने 1935 में इसको पब्लिश किया था, और ये एक ऐसा नॉवल है जिसने मुल्कराज आनंद को एज अ लीडिंग राइटर, लीडिंग इंग्लिश ऑथर इस्टेब्लिश किया था इंडिया में. गांधी जी ने सिर्फ अनटचेबल ही नहीं बल्कि बहुत सी और राइटिंग्स को इंस्पायर किया है, बहुत से लोगों को इंस्पायर किया है. गांधी इंस्पायर्ड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज हु बिकेम यूनाइटेड एक्चुअली टू गेन देयर फ्रीडम टुगेदर फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिशर्स. Gandhi ji insisted on simple living and high thinking and untouchability as an evil, a ruining element for the society, which was reflected and highlighted by the literary authors in many of their novels.
Gandhiji is the most cited personality in Indian literature specifically, and he was so much part and parcel of every literary genre of that period that he made appearance in many dramas, many novels, many stories, many poetries. इस नॉवल में भी हमें लास्ट में गांधी जी का एक रोल देखने को मिलता है. एक्चुअली गांधी जी इज़ नॉट एन एक्टिव कैरेक्टर हियर, बट हमारा जो सेंट्रल कैरेक्टर है बाघा, वो गांधी जी की एक स्पीच सुनता है कि बहुत ही जल्दी अनटचेबिलिटी रिमूव हो जाएगी हमारी सोसाइटी में से और फ्लशिंग सिस्टम आ जाएगा, जिसको सुनकर हमारे उस कैरेक्टर को, जो कि उस पूरे दिन बहुत ही दुखी रहे हैं, उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और थोड़ी सी पॉजिटिविटी वो फील करते हैं बाय द एंड. दिस इज़ द रोल ऑफ गांधी इन दिस नॉवल. इसी के और पार्ट को देखिए. डिस्कस द यूज़ ऑफ वेरियस मिथ्स एंड सिम्बॉलिज्म इन राजा राव's नॉवल कंठापुरा. कंठापुरा एक बहुत ही फेमस नावल रहा है अपने टाइम का, और इस नावल ने भी उन्हीं सारी नेगेटिविटीज़ को दिखाया है जो कि ब्रिटिशर्स हम पर प्रैक्टिस किया करते थे. अब सबसे पहले देखते हैं कि मिथ का रोल यहाँ पर क्या है. हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, वेरियस यूज़ ऑफ वेरियस मिथ्स एंड सिम्बॉलिज्म. तो मिथ क्या होता है, किसी भी तरीके की कोई स्टोरी जो किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में फेमस होती है. द मिथ वी कैन से इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ एनी कंट्री, एंड इंडिया इज़ एसेंशली अ वेरी रिच कंट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कल्चर. Every village of India has its own story, own origin, true or not, that is a secondary thing. Myth forms an important part of every human, particularly of those who are away from scientific knowledge. And the plot of the story is laid in an imaginary village which is surrounded by other imaginary villages. In this novel, Raja Rao makes the narrative in the form of Sthala Purana. अगर किसी ने डीप स्टडी की है तो they will be knowing the meaning of Sthala Purana. एक पर्टिकुलर प्लेस की एक पर्टिकुलर स्टोरी होती है हर प्लेस की, जैसे कि अयोध्या की स्टोरी है कि यहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया था. उसी तरीके से इस पर्टिकुलर विलेज की स्टोरी जुड़ी हुई है हमारे सेंट्रल कैरेक्टर मूर्ति से, जिसको नरेट किया जाता है. एंड द नरेशन इज डन orally, the way Mahabharata and Ramayana, maybe these kind of texts orally pass from generation to generation. कंठापुरा की स्टोरी को आप लोग ज़रूर जानिए. बेसिक प्लॉट में आपको बता देती हूँ. कंठापुरा इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ गांधी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश केम टू अ टिपिकल विलेज कंठापुरा इन साउथ इंडिया. पब्लिश हुई थी 1938 में. अब वेरियस सिम्बल्स देखते हैं. देयर आर 3 बेसिक मेजर सिम्बल्स, केंचम्मा द गॉडेस and khadi, and after that Skiffington estate of coffee, you can say. In Kanthapura village, the first point, the Kenchamma goddess is a symbol of divine and spiritual power. The goddess is believed to have killed all the demons that troubled people, and the villagers think that the Kenchamma goddess is sent from heaven directly to look after the spiritual well-being of the people of this village. Next symbol is khadi. Whenever Murthy is converted to Gandhism, he threw out his foreign clothes and his foreign books into the fire, and he adopted khadi and charkha culture. The clothes and charkha both actually are a symbol of British rule, and by contrast khadi and चरखा आर सिंबल ऑफ इंडियन सेल्फ रिलायंस. यहाँ पर ये दिखाया गया है कि अगर आप खादी पहनते हैं, अगर आप चरखा लेकर अपने कपड़े खुद बनाते हैं, तो आप एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बन सकते हैं. आपको ब्रिटिशर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. एंड द नेक्स्ट वन इज स्किफिंगटन गेट, और यू कैन से स्किफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और ब्रिटिश पावर को दिखाता है. एक्चुअली स्किफिंगटन गेट इज़ द पावरफुल सिंबल ऑफ द डिविजन ऑफ पावर बिटवीन British and Indian of foreign rule and self rule. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इट इज़ अबाउट स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद जिनकी एक बहुत ही फेमस स्पीच है 1893 में उन्होंने डिलीवर की थी वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में. इसके मेजर फीचर्स बताने हैं हमें. तो लेट अस हैव अ लुक एट द फीचर्स एंड लेट अस नो समथिंग अबाउट द स्पीच एज वेल. स्वामी विवेकानंद बेस्ट नोन इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हिज स्पीच to the 1893 वर्ल्ड्स पार्लियामेंट रिलीजन्स. और 3 मेजर फीचर्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपनी स्पीच में. ही इंट्रोड्यूस फर्स्टली हिंदुज़म टू अमेरिका. ही कॉल्ड फॉर द रिलीजियस टॉलरेंस नेक्स्ट, एंड वेरी फेमस लाइन ही सेड, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज़ टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस,
एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। मैं बड़ा ही गर्व फील करता हूँ एक ऐसे धर्म से जुड़े होने की वजह से जिसने मुझे टॉलरेंस सिखाई और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस सिखाई। ही एम्फेसाइज्ड ऑन टू वाइटल रिक्वायरमेंट्स फॉर द वर्ल्ड पीस, ब्रदरहुड एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बेसिकली। तो उन्होंने वर्ल्ड पीस को भी स्ट्रेस किया। आई मस्ट से दैट स्वामी जी's whole life and teaching have been a call to the people to rise and become a better version of them। वो हमेशा चाहते थे कि हर इंसान अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे तो दुनिया अपने आप बेहतर हो जाएगी। वेरी सिंपल। दिस स्पीच वॉज अ स्मॉल समरी ऑफ द कोर वैल्यूज़ विच स्वामी विवेकानंद जी sought to impart throughout his life, a very short span actually. He lived for a very shorter period of time. 1863 he was born and died in 1902. A great loss for India. Then discuss the political dimensions in Anita Desai's novel Clear Light of the Day. आइए क्लियर लाइट ऑफ द डे के बारे में जानते हैं। आई होप आप सबको स्टोरी पता है इसकी। क्लियर लाइट ऑफ द डे इज़ ए नॉवेल पब्लिश्ड इन 1980 बाय इंडियन नॉवेलिस्ट एंड 3 times बुकर प्राइज़ फाइनलिस्ट अनीता देसाई। अब देखते हैं कि इसकी स्टोरी में पॉलिटिकल थीम किस तरीके से है। द नॉवल प्राइमरीली एंगेजेस विद द रिलेशनशिप बिटवीन कैरेक्टर्स एंड देयर आर ऑल्सो कॉमेंट्स ऑन politics as seen in one of the character Raja's interaction with Hyder Ali and the post-independence troubles. The way whole India had a partition, the family was also separated from each other. That is one major theme, partition. Raja moves to Hyderabad to follow his hero Hyder Ali Khan Sahib, and Tara the girl marries out of desperation to leave her dysfunctional family, and Bim, who is a central character, Bim and Baba remain in the house full of ghosts of their childhood, full of memories of their childhood, I must say. And their separation is a parallel of whole India's partition. This is one political theme. Another political parallel is the tension of Hindu-Muslim relationship between the whole country. The tension between Muslims and Hindus are clearly shown by their father's refusal to allow Raja to go to a Muslim university and study Urdu literature because he has cause to fear for his safety. This book also mentions the partition riots, partition में जो दंगे हुए थे, as well as the refugee camps too. It also depicts the flight of the अलीस को किस तरीके से ये जगह छोड़कर हैदराबाद जाना पड़ा था, the Das's Muslim landlords and neighbors. तो हिंदू मुस्लिम्स के रिलेशनशिप किस तरीके के रहे इस पूरी स्टोरी में वो दिखाया गया है. The same thing was going on actually in reality in whole India at that point of time. So we can say there is a political parallel that we can see here in partition as well as in the Hindu-Muslim relationship during the political heat of 1947. देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. डिस्कस अमिताभ घोष एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर विद रेफरेंस टू हिज स्टोरीज इन योर सिलेबस. 500 वर्ड्स में लिखना है आपको ये आंसर. सभी की वर्ड लिमिट दी गई है. घोष के बारे में जानते हैं पहले थोड़ा सा. अमिताभ घोष is an Indian writer and winner of 54th Gyanpith Award, India's highest literary honor, best known for his work in English fiction, and his ambitious novels generally use complex narrative strategies to prop the nature of national and personal identity, particularly of the people of India, and not only India but Southeast Asia as well. अब बात करते हैं उनकी कुछ राइटिंग्स के बारे में. अमिताभ घोष जिनका कि फर्स्ट नॉवल था द सर्कल ऑफ रीज़न 1986 का, एंड सेकेंड नॉवल द शेडो लाइन्स विच वॉज ऑल्सो वेरी फेमस इन एन एंटीक लैंड 1992. फोर्थ नॉवल द कैलकाटा क्रोमोसोम्स एंड द फिफ्थ वन द ग्लास पैलेस जो कि 2000 में आया था. सी ऑफ पॉपीज़ भी बहुत फेमस है और जंगल नामा इज़ द लेटेस्ट वन 2021 का ही है ये. Rather than focusing on short stories and novels, he is famous for non-fiction, specifically I must say travelogues. उसी का एक एग्जाम्पल है डांसिंग इन कम्बोडिया एंड एट लार्ज इन बर्मा 1998 का, जो कि एक ट्रेवलॉग तो है ही, साथ ऐसा लगता है कि स्टोरी भी इसमें इनकलकेटेड है in between. The first chapter, Dancing in Cambodia, is based on his visit to Cambodia in 1993 and he makes very skillful use of his talent as a writer. The second chapter, Stories in Stone, ध्यान से नोट कीजिए. Stories in Stone, it describes his experience in Angkor Wat.
This is the place Angkor Wat, a Buddhist temple in Cambodia, and the dedication of the workers trying to restore the monument. The life story of Kong Smith. वो एक पर्सन की लाइफ स्टोरी लिखते हैं जिसका नाम है कॉन्ग स्मिथ, अ 40 years old worker totally devoted to Vikram Seth and Angkor Wat temple. Dancing at Cambodia outdoes Ghosh's novel in felicity of the language, and it is a moving account of the undying courage and common humanity linking people of different countries. We can say Dancing in Cambodia at Large in Burma is a fiction, not a factual travelogue actually. Rather than telling about the places, it tells more about the stories of the people and the stories of places. इसी क्वेश्चन का और पार्ट देखते हैं. डिस्कस गीता हरिहरन एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर with reference to her stories in your syllabus. गीता हरिहरन, इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा. बहुत ही फेमस राइटर हैं. गीता हरिहरन इज़ एन इंडियन राइटर बेस्ड इन न्यू दिल्ली एंड हर फर्स्ट नॉवल द 1000 Faces of Night. It won the Commonwealth Writers Prize for the best first novel in 1993. Geeta Hariharan's published work includes novels, short stories, essays, newspaper articles and columns, etc. She has published several short stories in magazines and journals, The Art of Dying and Other Stories. This is what is there in our course. The Art of Dying and Other Stories 1993 contains 20 of her short stories, and out of these Gajar Halwa is basically very important in our syllabus. Gajar Halwa, it seems like a sweet dish actually. The story is a moving account of a young girl जिसका नाम है पेरूमई, जिसने सेलम में अपनी लाइफ बिताई है और बाद में वो एक बिग सिटी में आकर एक मेड बन जाती है. किस तरीके से वो एज अ मेड सिटी लाइफ में एकोमोडेट हो जाती है, यही वो स्टोरी में सोचती हैं गाजर हलवा बनाते हुए. गाजर हलवा, अ कॉमन homemade sweet dish in winters in almost the whole of North India, I must say. Very good favorite dish of people. Geeta Hariharan uses it as a very effective imagery. And while she is making गाजर हलवा, she examines the whole process कि किस तरीके से अलग अलग चीज़ें, दूध, गाजर, स्वीट डिश एंड ड्राई फ्रूट्स एक दूसरे में एसिमुलेट हो जाते हैं और एक स्वीट डिश एज अ प्रोडक्ट बनाते हैं. उसी तरीके से वो भी एक विलेज से आकर यहाँ की लाइफ में एकोमोडेट हो गई है. हर स्टोरीज आर जनरली कंसर्न्ड अबाउट हाउ वीमेन डील विद द सैंक्शन ऑफ स्पेस इन द इंडियन सोसाइटी एंड द पॉसिबिलिटी और एब्सेंस ऑफ चॉइस इन द ब्रॉड कंटेक्स्ट ऑफ आवर एथोस, आवर इमोशंस एंड सोसाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, डिस्कस दी नरेटिव टेक्निक ऑफ सलमान रश्दीज नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन. 500 वर्ड्स में आपको ये आंसर करना है. आइए मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. मिडनाइट चिल्ड्रन इज़ अ 1981 novel by the author Salman Rushdie. It portrays India's transition from British colonial rule to independence and the partition of India. और इस नॉवल का एंड होते होते हम इमरजेंसी पीरियड को भी एक्सपीरियंस करते हैं. इट इज़ कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट मॉडर्न एंड मैजिकल रियलिस्ट लिटरेचर. 3 तरीके की जॉनरेज में ये फॉल करता है. एंड इन दिस नॉवल रश्दी इंट्रोड्यूसेस इनोवेटिव नैरेटिव टेक्निक विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंटेम्प्रेरी राइटर्स. ही यूजेस द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव थ्रू सलीम सिनाई. सलीम सिनाई जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का, द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द नॉवल. द राइटर रश्दी ऑल्सो मेक्स यूज ऑफ डिवाइस ऑफ मैजिक रियलिज्म इन मिडनाइट्स चिल्ड्रन. This is an English novel, but he uses at point of time some Hindi words as well, or some words which are known in Hindi culture like ekdam, angrez, firangi and magical words like abracadabra. It gives very much Indian flavor to the novel. Above all, Rushdie can be considered the master of narrative techniques at the present time. Novels, they say, people say, must have a beginning, a middle and an end, just like plays, but they don't always begin at the beginning. Midnight Children meticulously follows the rules for writing novels by announcing the hero's birth. हमारे नॉवल की शुरुआत होती है सलीम सिनाई, दैट इज़ द हीरो, उनके बर्थ के साथ, लेकिन नॉवल फ्लैशबैक्स में भी जाती है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यूड रहती है एट टाइम्स. द नॉवलिस्ट एम्प्लॉयज अ पर्टिकुलर मैनर ऑफ टेलिंग अ स्टोरी बिकॉज ही वॉन्ट्स टू शो हाउ stories are made, and this is the talent that he has used in making it a fiction, making it an interesting story.
नाउ वी विल टॉक अबाउट तारा। तारा जो कि एक बहुत ही फेमस प्ले है। आप लोग कमेंट्स में लिखकर अपने कुछ भी डाउट्स को पूछ सकते हैं। तारा जो कि 1995 में पब्लिश की गई थी बाय द राइटर महेश दत्तानी, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Tara, published in 1995 by Mahesh Dattani, and I must say he is the first playwright in English to be awarded the Sahitya Academy Award. First playwright, ये नोट करिए पहले। फर्स्ट अवार्ड वैसे तो आर के नारायण को मिला था, बट दैट वाज फॉर राइटिंग नॉवेल। ही इज़ द फर्स्ट playwright to receive this award. Best book which expressed disability of human being and society because of wrong decision and gender discrimination. This book is best drama for social awareness of feminism, I can say. Tara tells the story of Chandan and Tara, who are conjoined twins. एक दूसरे से जुड़े हुए पैदा होते हैं, and there is a surgery also that takes place. Following a surgery intended to separate the two, Chandan ends up ridden with guilt over the fact that he benefited from this surgery while his sister Tara suffered and eventually died as a result of it. दोनों की एक कॉमन लेग थी। अकॉर्डिंग टू सम मेडिकल पीपल, मेडिकल प्रोफेशनल, वो लेग तारा को मिलनी चाहिए थी, लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो लेग चंदन को मिलती है। तारा की डेथ हो जाती है कुछ सालों बाद, एंड चंदन इज़ ऑलवेज गिल्ट स्ट्रिकन इन दिस ड्रामा. So here we come to the end, and once again I'll say ki please keep in mind that there is no shortcut for your preparation, and you need to understand the things deeply. And this video will be helpful for only those who have already studied all the topics in a deeper manner. And again I'll say कि आप में से बहुत से बच्चे फ्यूचर लेक्चरर्स बनेंगे, UGC नेट PhD की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अभी से अपनी स्टडीज़ को थोड़ा सा thoroughly पढ़ें. Best of luck for your exams, and thanks for watching the video.